این سی این ٹی وی کے پروگرام ٹاک شو آپ کے مطابق میں سیمسن جاوید اور میری ساتھی میزبان محترمہ ایسٹر ڈینیل صاحبہ کی جانب سے تمام ادبی پینلسٹ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادب سیاست کی نظر۔ میں ایک دفعہ پھر بولتا چلوں کہ ادب سیاست کی زد میں۔ ادب زندگی کا آئینہ دار اور مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ ادب کا زندگی سے براہ راست تعلق ہونے کی بنا پر سیاست کا ادب پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک طرف سے ہی سب اقدار کے تانے بانے زندگی اور سماج سے جڑے ہوئے ہیں، ادب دیگر تمام اقدار اور جہد کی طرح سیاست کو بھی بھرپور انداز میں بیان کرتا چلا آیا ہے، کبھی نظم میں تو کبھی غزل کے رنگ میں، کبھی براہ راست مضمون میں تو کبھی ناول و افسانہ کے تناظر میں۔ سیاست کا بیان آج بھی ادب میں جاری و ساری ہے۔ ادب اور سیاست کے تناظر سے بڑی بڑی ادبی تحریکیں، انقلابات، معاملات اور جدید ادبی نظریات جڑے ہوئے ہیں۔ ادب اور سیاست کے تناظر سے بڑی ادبی تحریکیں جو ایک انقلاب کی وجہ بنی، وہ آئے۔ ادب کو سیاسی مقصد کے لیے محض مقتدر اعلیٰ طبقے نے ہی استعمال نہیں کیا، بلکہ معروف شعراء اور نثر نگاروں نے بھی بالواسطہ اور بالا واسطہ اپنے فن پاروں میں اپنے عہد کی سیاسی صورتحال کا پردہ چاک کیا ہے۔ ادب سیاست کے پیچھے چلنے والی حقیقت نہیں ہے۔ ادب سیاست کے پیچھے چلنے والی حقیقت نہیں، بلکہ ایک ایسی مشل ہے جو سیاست کو راہ دکھاتی ہے۔ نیا ادب، جس کے مختلف نام ہیں، اپنی معاشی، معاشرتی اور فکری تبدیلیوں کو منعکس کرتا ہے اور یہی اس کی شناخت ہے۔ ادب میں سیاسی آزادی، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہر لمحہ نقطہ چین نگاہیں موجود رہتی ہیں۔ سیاست سماج کی ہی ایک کڑی ہے۔ معاشرت ہو، سیاست ہو یا سیاست کے ضمنی مباحث، ادب ہر ایک کی توسیع کرتا ہے، کیونکہ ایسا ادب یا ادیب جو سیاست سے تعلق رکھتا ہو قطعی غیر ضروری اور غیر ادبی عمل سمجھا جاتا ہے۔ آج کے اس موضوع گفتگو کا بڑا مقصد بھی یہ ہے کہ کیا مسیحی ادبا، شاعر کرام ادب کی اس کسوٹی پر پورا اتر رہے ہیں؟ جتنی بھی ادبی تنظیمیں ہوں یا ادبا و شعراء معاشرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر ادب سیاست کا شکار ہو کر رہ جائے، کوئی کسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو، تو ادب یا ادبی ترقی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، بلکہ وہ ادب کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ ایک طرف ہم اس بات کا رونا بھی روتے ہیں کہ تعلیمی سلیبس یا قومی سطح پر مسیحی ادبا اور شاعر حضرات کو شامل نہیں کیا جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں ادبا شاعراء اکرام کتنے ہیں جنہوں نے اپنی نسل کو اپنے ان ہیرو سے متعارف کروایا ہے اور ہمارے معاشرے کو متاثر کیا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا مسیحی ادب سیاست کا شکار تو نہیں ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی میزبان ایسٹر ڈینیل جن کا شکریہ ادا کروں کہ اس آج کا جو ایک ہمارا ٹاک شو تھا، اس میں محترمہ فردوس کامران توشی صاحبہ نے آنا تھا، لیکن کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے وہ نہ آئی، اور ایسٹر ڈینیل ایمرجنسی فار ایور ریڈی اور ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری استدعا ہے کہ وہ مہمانوں کا تعارف کراتے ہوئے آج کی گفتگو کو جاری کریں۔ تھینک یو جی تھینک یو سو مچ سیمسن صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ویورز کو جو ہمیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، سب کو اپنی طرف سے اور NCN ٹیلیویژن نیٹ ورک کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ نے بہت سارا بول بھی دیا، ادب کے بارے میں بتایا، لیکن بہرحال
थोड़ी सी बात जो मैं आगे इसको बढ़ाना चाह रही हूँ यही कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि बुनियादी तौर पे जो अदब है वो हमारी आम जिंदगी का एक अक्स है। इंग्लिश में इसको आप मिरर टू लाइफ कह सकते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ कहा जा सकता है, जो कि हूबहू उसी अंदाज में पेश कर किया जाता है जैसा कि वो है, यानी विदाउट एनी चेंज। और चाहे वो शायरी की फॉर्म में है, ड्रामा की फॉर्म में है, सफरनामा की फॉर्म में है, या वो नॉवेल या किसी अफसाने की शक्ल में है, यानी इसको हूबहू पेश कर दिया जाता है। इसी को यही अदब है। जहाँ अदब जो है वो जिंदगी का अक्स जरूर है, लेकिन ये भी हमें याद रखने की जरूरत है कि ये इजहार की खूबसूरती का भी एक नाम है जो हमारे एहसासात और जज्बात से जुड़ा हुआ है। और इसको अगर हम देखें बुनियादी तौर पे तो इसको हम इसके 3 मकासद जो है वो हमें समझ आते हैं, जिसमें पहला जो है इमेजिनेशन और एंटरटेनमेंट है, दूसरा इंफॉर्मेशन है, और तीसरा जो है वो है मॉरल लेसन्स या इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हर किस्म का जो भी अदब है उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। इसी तरह हम सियासत की तरफ जब आते हैं तो ये सियासत जो है ये एक ताकत के मुताले का नाम है, एक खास किस्म की ताकत जिससे इंसान एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अदब सियासत की जद। और अभी आज के प्रोग्राम में यकीनन इस टॉपिक पे बात करते हुए हम ये देखेंगे कि क्या अदब और सियासत का आपस में कोई ताल्लुक है और ये किस हद तक जो है एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और इसके क्या नताइज हो सकते हैं। तो बहरहाल ऑफिशियली अब इस प्रोग्राम को जो है आगाज किया जाता है। और सबसे पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं उन सबको उनका तारुफ करवाना चाहती हूँ और उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। हमारी खास जो हमारी ऑनरेबल गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर प्रिया तबीता। ये शायरा हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद भी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स के साथ साथ इन्होंने एक नेशनल अवार्ड्स और कायद आज़म हिलाल अहमद गोल्ड मेडल अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। पीएचडी हैं और पीएचडी उर्दू 2015 में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान बराए असिस्टेंट प्रोफेसर में टॉप लिस्ट में इनका नाम था, जो कि एक बहुत एजाज की बात है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज बराए खवातीन लाहौर में असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू में आजकल काम कर रही हैं। इनकी बहुत सारी तसानीफ हैं जिनमें उर्दू नावल के मनफी किरदार तहकीक व तनकीद है, हमेशा रूठ जाते हो शायरी की इनकी किताब है, यूनस अदीब, हयात व फन, तहकीक व तनकीद और कुलियात अंजलि। ज़ेर तबा कुतुब में इनकी कुछ किताबें शामिल हैं जिनमें आलमी दिन जो है वो एक तहकीक है, यानी एक रिसर्च वर्क भी है, और इसके अलावा शायरी की कुछ किताबें लिख रही हैं। तो डॉक्टर साहबा हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान है वो हैं असनात कमर। ये शायरा हैं, कॉलम निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, तहकीक रिसर्चर भी हैं और अफसाना निगार और नॉवलिस्ट भी हैं। इनकी किताबों में जो खास नाम है वो है पानियों के फूल। इसके अलावा कॉलम्स पर अपनी किताब है ख्वाब और इनकलाब, सहरा की हथेली पर दिया, तनकीद व तहकीक, यानी इस पे रिसर्च वर्क था इनका। इसके अलावा आंख में पानी रहने दो। इसके अलावा ये बहुत से अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं, पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। तो मैडम हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर आदिल अमीन। ये शायर हैं, मुतरज्जिम हैं और माहिर अलमियात हैं। वाइस प्रिंसिपल एनसीसीपी लाहौर भी रह चुके हैं। 358 मसीही कुतुब का तर्जुमा कर चुके हैं, अदब पर गहरी नज़र रखते हैं और आजकल शेरी मजमुआ एक लिख रहे हैं जिसका नाम है दरीदाए सुखन। तो डॉक्टर साहब हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और हमारे जो लास्ट हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं एडवोकेट डॉक्टर तारिक जावेद तारिक। शायर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और 25 साल से एडवोकेसी में काम कर रहे हैं, एडवोकेट हैं। उर्दू में पीएचडी कर चुके हैं और इसके अलावा एमए इंग्लिश भी हैं। मेंबर जिला काउंसिल और नाज़िम रह चुके हैं। तो जनाब तारिक साहब हम आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद किया जी। थैंक यू। अच्छा, आज बड़ी खूबसूरत बात ये है कि जो हमारे मसीही कम्युनिटी, ये मसीही कम्युनिटी के नहीं बल्कि हमारी एक बड़ी स्ट्रीम के लोग हमारे साथ शामिल हैं और सारे के सारे ही डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं और दानिश्वर लोग हैं। और खुदा खैर करे
आज जिस टॉपिक में हम बात करना चाह रहे हैं, एक बड़ा खूबसूरत और एक जी बड़ा अच्छी बात सामने ये आएगी कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे शायद ये कुछ जिस तरह हम कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनके, काफी सारी तनकीद का मुझे सामना भी करना पड़ा। वो सोच ये रहे थे कि शायद हम हदफे तनकीद बनने जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी लेकिन नाजरीन या जो भी सुन रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं, ये कतन आज के इस टॉक शो का मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी का अदब फरोग पाए। अगर कोई कहीं ज़्यादा में आ गया सियासत की, तो वो जो है वो उसमें ज़्यादा से बाहर आए और इस तरह हम मेन स्ट्रीम पे जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया एस्टर जी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज वाकई हमारे साथ बहुत हाई प्रोफाइल्ड और काबिले एहतराम मेहमान मौजूद हैं, और हम यकीनन इनसे जो भी इनसे गुफ्तगू होगी, ये हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए एक सेर हासिल गुफ्तगू होगी, और यकीनन हमारे लिए सीखने का बहुत बड़ा ज़रिया भी होगा। तो आज पहला हम ऑफिशियली अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और मैं पहला सवाल डॉक्टर प्रिया तबीता साहबा से करना चाहती हूँ। ये इनसे जो सवाल है वो कंटेम्परेरी जेलसी के बारे में, कि उर्दू अदब की तारीख में मुअस्सराना चश्मक यानी कंटेम्परेरी जेलसी का बहुत रवाज रहा है। क्या अहद हाजिर में हमारे मसीही शोरा इस मुअस्सराना चश्मक और ग्रोहबंदी का शिकार हैं? आप इस बारे में क्या कहती हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ा हसास मौजू है जिस पे आज हम सभी को बात करनी है। जी खैर सवाल की तरफ आते हैं कि जो मुआसराना चश्मक है, जो ग्रुप दिया है, इल्म अदब या शेर व सुखन ऐसे लतीफ जज्बात के हामिल अल्फाज हैं कि इनके साथ सियासत और धड़ेबंदी और ग्रोहबंदी जैसे गैर अदबी अल्फाज जो है वो सारा तासुर खराब कर देते हैं। ये जो शेर व सुखन की महफिलें हम सजाते हैं, बुनियादी तौर पर उनका मकसद भी फहम फरासत को जिला बख्शना ही होता है। अदब के साथ वैसे भी तहजीब का, शाइस्तगी का और करीने का, सलीके का, अखलाक का और इस्लाह का तसव्वुर ज़हन में आता है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर धड़ेबंदियां किस लिए, ग्रोहबंदी किस लिए, सियासत किस लिए? लेकिन शायद मसला ये है कि फितरी तौर पर शायद हर इंसान ही एहसास तफाकुर, एहसास बरतरी, तासुब, तंज और इस तरह की बातों का कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ अंसर पाया जाता है। शायद यही वजह है कि तारीख आके देख लें तो जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, सूफिया कराम गुजरे हैं, जो फिलोसफर गुजरे हैं, अपने ज़माने में जो उनके साथ जो उनके मुकाबिल थे, कहीं ना कहीं उनके साथ सफर आ रहे। इसी तरह जो शायर और अदीब हैं, उनके साथ भी यही सिलसिला रहा, वो भी इस रुझान का शिकार है। तो मैं ये बात कर रही थी कि ये जो नोक झोंक का या तासुब का और खुद पसंदी का ये जो एक सिलसिला है, शायद इसकी जद में तो बहुत से लोग हैं, शायद हर इंसान में फितरी तौर पर भी ये चीज पाई जाती है। और तारीख ये कहती है कि उलमाए कराम, सूफिया कराम, फिलोसफर सभी कहीं न कहीं इसका शिकार रहे। इसी तरह जो शायर और अदीब हजरात, उनके यहाँ भी ये रुझान पाया जाता है। उर्दू अदब की तारीख पे आप नजर डालें तो मीर सौदा का दौर हो या आतिश और नासिक की बात करें, गालिब मोमिन के दौर को उठा के देख लें या अनिस दबीर की बात करें, इंशा और जुगत का जमाना देख लें, तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला मौजूद रहा है। जो मुअस्सराना चश्मक है और जो ग्रोहबंदी है, ये मौजूद रही है। लेकिन हुआ ये कि उसमें उर्दू अदब को फायदा भी बहुत हुआ। नुकसान तो जाहिर है होता ही है, अखलाकी सतह पर तो नुकसान ही है इसका, लेकिन इसका फायदा भी हुआ, अदब का दामन वसी भी हुआ। जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर हमें अदब को फरोग देना है, अदब को तरक्की देनी है, तो फिर हमें एक तख्लीकी और तहजीबी फजा परवान चढ़ानी होगी। और ये जो नोक झोंक का, ये जो जातियात की सतह तक उतर आना है, या जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का सिलसिला है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है। अफसोस का मुकाम है कि हमारे मसीही शायरों के यहाँ भी ये रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए आज जिस जमाने में हम मौजूद हैं, वहाँ पे तो ये दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज से ग्लोबल हट में तब्दील होती जा रही है। आज के जमाने में जो शेरो अदब से वाबस्ता लोग हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आज के जमाने में वही शायर अदीब बुलंद मर्तबा हासिल कर सकता है, मुकाम हासिल कर सकता है जिसकी तहरीर जानदार है।
اور جو شعر و ادب کے تقاضے پورے کرتا ہے، جو ادبی تقاضے پورے کر رہا ہے، اور جو معیار اور مقدار کا فرق سمجھتا ہے، جو معیار کو مقدار پہ ترجیح نہیں دیتا، جس کی تحریر پر تاثیر ہے، جو نئے تجربات کو بھی ذہن میں رکھتا ہے اور کلاسیکیت کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور جو آج کا قاری ہے وہ بھی ایسا بے خبر نہیں ہے، وہ بھی باشعور ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ قدر شخصیت ہے کون سی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس طرح کی کسی سرگرمی میں ملوث ہیں، انہیں اپنی سوچ کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایک قدر شخصیت ہے اور اس کا کوئی مد مقابل، جسے وہ شاید اپنے آپ میں ہی سمجھے کہ میرا مد مقابل ہے، تو اسے پھر اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی اختلاف رائے رکھتے ہیں تو پھر دلیل بھی پیش کرنی ہوگی، تنقید کرتے ہیں تو پھر تحقیق بھی تو ضروری ہے۔ اس لیے مختصر اگر اس بات کو میں سمیٹوں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ادب میں ترقی چاہتے ہیں، فروغ چاہتے ہیں، تو بے شک گروہ بندیاں ہوں تو اس کو مثبت سرگرمی بنانا چاہیے۔ مطلب اخلاقیات تک کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اخلاقی سطح سے نیچے نہ گریں، جو سطحی قسم کی سیاست ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ میں دوسرا کوشچن پوچھنا چاہوں گا آسنات صاحبہ سے۔ آسنات صاحبہ، ادیب بعض اوقات شعوری اور غیر شعوری دونوں طرح سے اپنے عہد کی تصویر کشی کرتا ہے، اس کے لیے اسے غم جانا بننا پڑے یا خون دل میں انگلیاں ڈبو کر خامہ فرسانی کرنا پڑے، وہ ہر حال میں مشق سخن جاری رکھتا ہے۔ کیا ہمارے ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ادبا اور شعراء کرام نظر آتے ہیں جن کی زندگی کا یہ نصب و لائن ہے کہ چاہے وہ کسی مشکل میں پڑتا ہے، چاہے وہ مصیبت میں پڑتا ہے، لیکن وہ اپنی جو ایک اس کے ذمہ داری یا جو خدا نے اس کو توڑا دیا وہ اس کو جاری اور ساری رکھنے میں مصروف عمل ہے۔ جی آسنا صاحبہ۔ بہت شکریہ اس خوبصورت پروگرام کے لیے، اس اچھے موضوع کے لیے بھی۔ اس موضوع پہ ہمیں بات کرنے کی دراصل ضرورت ہے۔ ورڈسورتھ نے کہا تھا poets are born not made, kings are made not born۔ تو معذرت کے ساتھ موجودہ حالات میں شاعری بورن یعنی سنجیدہ لوگوں کے پاس کم ہے، اور تک بندی اور لفظوں کو شعری کالم میں ڈالنے کا رجحان کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ ہم جب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا یہ خون جگر جلا کر ہو رہی ہے یا نہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کے پاس واقعی یہ فن ہے وہ پورے طور پر اس کو استعمال میں لا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ کام ہو رہا ہے، اور وہ ادب میں اپنا نام اور مقام بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ادب ذہنوں کی آبیاری کرتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بے شک ادب میں بہت سی علائشیں شامل ہو چکی ہیں۔ ان میں جیسے ابھی آپ نے اس موضوع پہ ڈاکٹر پریا نے کافی تفصیلی گفتگو کی کہ ادب سیاست کی زد میں ہے، تو ادب سیاست کی زد میں بھی ہے، لیکن جہاں تک ادب کی بات، اگر خالص ادب کی بات ہم کرتے ہیں تو ادب میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ادب ہے یا ادب نہیں ہے، شاعری ہے یا شاعری نہیں ہے، ہم اس کو بنا نہیں سکتے، ہم اس کو گھڑ نہیں سکتے۔ یہ خالصتاً ہمارے اندر سے ایک کوئی چیز ہے جو باہر آتی ہے اور وہ لفظوں کا روپ دھارتی ہے۔ ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، آج کے ہم پہلے دور کی بھی بات کرتے ہیں، اور آج کے جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے میں ابھی پروفیسر یوسف نیر صاحب کے بارے میں، تو آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے شروع سے آخر تک کام کیا ہے، اور ہمارے پاس بہت سے ایسے ادیب، شاعر اور لوگ تھے جنہوں نے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا اور خون دل سے ادب کی آبیاری کی، اور آج ان کا نام بھی ہے۔ جیسے لاہور میں الحمرا میں ایک ادبی تقریب ہو رہی تھی، تو اس میں ہمارے ایک بہت بڑے شاعر احمد فراز موجود تھے۔ انہوں نے کہا جینون رائٹر ہونے کا ثبوت یہ ہے، اس بات کا پتہ اس بات سے چلے گا جب آج سے 50 سال بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے کیا لکھا اور اس کا نام جو ہے وہ کس حد تک قائم ہے اور زندہ ہے۔ یہ ہے ایک زندہ ادب کی نشانی کہ وہ کام جو ہے وہ کتنی دیر تک قائم رہے گا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ادب جو ہے خون دل سے لکھا گیا ہے تو وہ قائم رہتا ہے۔ ہمارے لفظ اپنا وزن رکھتے ہیں، لیکن
जो लोग सिर्फ तुकबंदी करते हैं या वक्त गुजारी करते हैं, वो भी आप देख लें कि वक्त उनका कितना साथ देता है और वो कितना नाम कमा सकते हैं। जो लोग जानदार लिखते हैं, जो जिंदा लफ्ज तहरीर करते हैं, वो रहेंगे और रहे हैं। हमारे मतलब बहुत सारे नाम हम गिनवा सकते हैं, जैसे अभी मैंने प्रोफेसर यूसुफ नैयर का जिक्र किया। हमारे बहुत से मसीही गीत निगार जो थे, उनका नाम और उनके गीत अभी तक गाए जाते हैं। डॉक्टर कमल फिरोज का नाम हम दे सकते हैं इस हवाले से कि उन्होंने बहुत काम किया और उनका नाम जो है वो कायम है। नजीर कैसर साहब हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। और हम आगे भी हम जो लोग हैं, हमारी जो नस्ल है, उसमें से भी आप देखेंगे कि बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं। उसमें नाम अगर हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी के हद तक बनाते हैं तो चले, वो एक ठीक बात है कि अपनी कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम मेन स्ट्रीम में आकर ये काम नहीं करते, अपने अदब को रोशनास नहीं कराते, जो कुछ हम लिखते हैं, जब तक उस पे लोग अपने कमेंट्स नहीं देते कि हम कैसा लिखते हैं, उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि हम किसी गहरे कुएं में बैठे हैं। हमें से बाहर निकलकर अपने अदब की इस रोशनी को पहुंचाने की जरूरत है। और अदब जो है, अगर किसी के पास है तो वो एक सांस की तरह है, मैं समझती हूँ। कम से कम मैं जब अपने तक महसूस करती हूँ तो शायरी और लिखना मेरे लिए सांस की तरह है, जिंदगी की तरह है। जब हम इसको शुरू करते हैं तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। कोई भी जेन्युइन राइटर इसको नहीं छोड़ सकता। वो लिखेगा और जिंदगी की आखिरी सांस तक लिखेगा, लेकिन उसका लिखा उस वक्त तक कायम होगा या उस वक्त तक कायम रहेगा अगर उसके लफ्जों में जिंदगी होगी, अगर उसके लफ्जों में दूसरों के लिए बेहतरी होगी, अगर वो अदब को वाकई पूरे ज़ौक़ व शौक से इस्तेमाल में लाएगा और दूसरों की ज़हनी सतह की तब्दीली के लिए और सियासत को, ये जो सियासत, गंदी सियासत जो आ जाती है हमारे दरमियान में, उसको निकालने के लिए खालिस नीयत से, खालिस दिल से, ग्रोहबंदियों से बालातर होकर, ग्रुपों से बाहर निकलकर और दूसरे को गिराने के चक्कर से बाहर निकलकर और टांगे खींचने के चक्कर से बाहर निकलकर, अगर हम खालिस मसीह शायरी के शायरों की बात कर लेते हैं, राइटर्स की बात कर लेते हैं, जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं निकलते, हमारी शायरी पायदार नहीं हो सकती। हमें अगर एक नाम बनाना है, अपने काम को 100 साल, 200 साल और इससे ज्यादा अरसे तक जिंदा रखना है, तो पहली बात हमें अपने इल्म पर साहबा, मैं अगर जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अदब तो इतनी सियासत की ज़ाद में नहीं है जितनी शायरी या जितने शायर जो सियासत की ज़ाद में हैं। क्या ये मैं सही सोच रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी तौर पर अब आज का तो दौर है, पहले दौर की मैं बात नहीं करती, लेकिन पहले दौर में भी था जब ये चीज चलती, हम उस वक्त भी देखते थे, मुआसराना चश्मिक होती थी, खींचने की भी बात होती थी, दूसरों को गिराने की भी, दूसरे का नाम बदनाम करने की भी, तज़हीक की बात। लेकिन आज के दौर में कुछ ज्यादा बढ़ गया है ये सिलसिला। वो इसलिए कि मीडिया की तरक्की ने जैसे ही इन सारी चीजों को एक साथ कर दिया है, हम दूर नहीं रहे। तो पहले जमाने में ये था कि चलो मुशायरे होते थे, अदबी प्रोग्राम होते थे, दूर दराज से जाना होता था, मिलना। अब हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है और दूसरे जराए हैं, और हम एक सेकंड से भी कम वक्त में एक से दूसरे बंदे तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह हमारी शायरी, हमारी चीजें भी दूसरे तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह मतलब हम ये देख रहे हैं कि उसमें, और हम सियासत इस हद तक है कि हम दूसरे को, बजाय कि हम दूसरों के लिए तरक्की का बायस हों, हमारे राइटर्स ही बन के दूसरों के लिए तरक्की का बायस बने, हम बहुत ज्यादा लोगों को डिमोटिवेट करते। बहुत शुक्रिया जी। एस्टर साहबा जी, थैंक यू सो मच असनाद साहिबा। नेक्स्ट सवाल है मैं आदिल अमीन साहब से करनी चाहती हूँ। यहाँ पे अभी डॉक्टर प्रिया साहिबा ने कहा कि अदब की तरक्की के लिए सोच का मुस्बत होना बहुत जरूरी है, तो आपका क्या ख्याल है कि सियासत का अदब में असरअंदाज होना एक मुस्बत अमल है? बहुत शुक्रिया एनसीएन टीवी और आप सारी टीम, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतना हसास मौजू आप लोगों ने छेड़ा है। और शुरू में शमसन जावेद साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे थे, वो हनूज
कई लोगों के सामने होगा कि पता नहीं आज यहाँ क्या होने वाला है। अदब और सियासत अपनी अपनी जगह पर दोनों ही पॉजिटिव है। अब अदीब और सियासतदान उनके रवैये इसे नेगेटिव बनाते हैं, इसका इस्तेमाल इसे नेगेटिव बनाएगा और हम अपने इर्द गिर्द हर रोज इसका मनफी इस्तेमाल देखते हैं। तंजीमें बनाना कोई बुरी बात नहीं, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रही थी, डॉक्टर प्रिया, कि काम को बढ़ाया जाना जो है ये एक मस्बत अमल है, इसकी वसअत जो है एक मस्बत अमल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग झगड़ा करके तक़सीम होते हैं। अगर वो 2 जगह बैठते हैं तो उस दूसरी जगह के सामने आने से पेशतर ये लाज़िम बात है कि उनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ है। और ये झगड़ा किस बात का है? अक्सरियत हमारे शुरा-कराम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि जब तक उनके पास कोई अच्छा ओहदा उन्हें ना दिया जाए, वो तंज़ीम में भी नहीं रहते। और बहुत से ऐसे शुरा-कराम हैं कि जब तक उनकी सदारत उनके सुपुर्द ना कर दी जाए, जब तक उन्हें एक ख़ास मनसब पर ना बुला लिया जाए, तब तक वो मुशायरों में शरीक भी नहीं होते। और ये तो शख्सियात की आदात हैं ना, अदब के तकाज़े तो ये नहीं है, ना ही सियासत का ये तकाज़ा है। अब अदब और सियासत ये समझ लें कि 2 पहियों की तरह हैं, इनको मुतवाज़न चलना होता है। लेकिन अगर सियासत अदब को दबाती रहे या सियासतदान अदीब को दबाता रहे, तो वहाँ से नताइज मस्बत तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकें। शेर कहना, नस्र लिखना या जो कुछ भी है, बहुत से लोग कई कुतुब के मतलब राइटर्स हैं, लेकिन वो इसनाफ से वाकिफ़ नहीं हैं। आप उन्हें मशवरा देकर देखें कि आप किसी जगह से थोड़ा नो हाउ लें इन चीज़ों की और किसी मयार पर आएँ, तो अगले ही लम्हे वो आपके दुश्मन हो जाएँगे। ये बातें बज़ाते खुद सियासत हैं। मफ़ाद के लिए हम तंज़ीमें बनाकर एक दूसरे के गले में हार डालते हैं। वो कुतुब या वो अदबी काविशें जो गैर मयारी हैं, उनकी हम रंगारंग तकारीब करते हैं, ओपनिंग करते हैं उनकी और उसकी पूरी तकरीब के पैसे देने के लिए लोग तैयार होते हैं। ये अमल जो है ये सियासत है और ये मनफी रुझान पैदा करती हैं ये चीज़ें। हमारे पास आज नए लिखने वाले बहुत शानदार लिख रहे हैं, उम्दा ख़यालात हैं उनके पास और बड़ी अच्छी ग्रिप है उनकी शायरी पर। लेकिन चंद लोग महज़ अपनी उजारादारी कायम रखने के लिए उन्हें पसे पुष्ट डाल देते हैं। तो क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं कि ऐसे किसी भी माहौल में एक तो हम रियासती सतह पर कई ज़्यादतियों का शिकार होते हैं, फिर हम आपस में इतना झगड़ते हैं, आपस में हमारे इतने मसाइल हैं कि मेन स्ट्रीम को तो हमारी फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं होती कि हम मुकाबले में उनके साथ आ जाएँगे। उन्हें तो ये मालूम है कि हम अपने झगड़ों में ही मसरूफ़ हैं, हमारी तरफ से तो वो बेफ़िक्र हो गए। हमें अपनी कौम को क्या देना है? मैं अगर शायर हूँ या मैं गीत निगार हूँ, मैं अगर चर्च के लिए लिखता हूँ, तो क्या मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए बाइबल मुक़द्दस का ठीक इल्म भी रखता हूँ या नहीं रखता हूँ? तो हमारे कई गीत निगार हैं जिन्हें ये तक मालूम नहीं कि बाइबल मुक़द्दस की टोटल कुतुब कितनी हैं और वो जो चाहते हैं लिखते हैं। हमारी डॉक्ट्रिन को वो आड़ा-टेढ़ा करते हैं, इलाहियात का सत्यानाश करते हैं। ये अदब की खिदमत नहीं है। यही वो खुदनुमाई है जिसका अभी ज़िक्र आप लोगों ने किया और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी ज़िक्र किया। खुदनुमाई अगर मोहब्बत अगर ये कहती है कि हम इस खुदनुमाई को कबूल करें, तो फिर 50 साल के बाद भी हमारे पास कोई मयार नहीं होगा। हम इसी मकाम पर खड़े रहेंगे और सियासत की ज़द में ही रहेंगे। आदिल अमीन साहब, जहाँ तक मैं ये समझा हूँ कि जो हमारा एक अदब है, जिसमें शायरी भी है या दूसरी भी है, कुछ हैसियत तो बड़े नाम भी हैं। क्या ये सारे के सारे असरी जो एक तकाज़े हैं, इन पर पूरा उतरता है? मैं अगर अपने ज़ाती मुशाहिदे की बात करूँ तो मैंने कभी कोई 2 बड़े नाम ऐसे नहीं हैं जिन्हें मिलकर बैठकर काम करते देखा हो। नफ़्सा-नफ़सी अपनी-अपनी दौड़ में हैं सब और फिर वही बात है कि यही एक रवैया सियासत बनकर इस्तेमाल होता है, अदब को नुकसान देता है। ये हमारे लिए हम लिखने वाले जो लोग हैं, हम बहुत मुतासिर होते हैं इससे
इस माहौल से। फलां को नहीं बुलाना, फलां को बुलाना है, उसको छोड़ो, उसको आगे ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। ये गिरोह बंदियां तो हैं। बाज़ जगह पे ऐसा भी देख रहे हैं जो मकामी को तो वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन समुंदर पार से वो लोग आ रहे हैं। हाँ। ये बड़े सारे ऐसे सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बात बढ़ाते हैं। एस्टर साहबा। बिल्कुल सही बात है कि अभी आदिल साहब ने यही फरमाया कि मुस्बत और मनफी ये दोनों चीजें, पॉलिटिक्स और जो लिटरेचर है, दोनों मस्बत हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन इनका नेगेटिव रुझान जो है वो भी शायर की अपनी ही सोच है, तो वो इसको मस्बत बनाता है या इसको नेगेटिव। बहुत खूबसूरत बात की आपने। नेक्स्ट जो सवाल है वो तारिक जावेद साहब से मैं करना चाहती हूँ। ये एडवोकेट भी हैं और इनसे इनका शायरी से भी ताल्लुक है। तो इनसे जो सवाल है वो ये है कि नया जो अदब है वो मुआशरती, मुआशी और फिक्री तब्दीलियों को मुनक्किस करता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या हमारा मसीही अदब इस मेयार पर पूरा उतरता है? पहले तो जो आपने मौजू चुना है, सियासत की ज़द में अदब, जी, यही है, ये अदब सियासत की अदब ज़द में, सियासत की ज़द में। जी जी, ठीक है। मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ कि मैं तो वैसे इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ, इस स्टेटमेंट से, कि जो अदब है वो सियासत की ज़द में है। ये अदब कभी भी किसी की ज़द में नहीं रह सकता। अदब जो है वो खुदरो पौधों की तरह है, जैसे जंगलों में बेल बूटे उगते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, और कोई रोके भी तो वो आतिश फिशां की तरह वो बाहर आ जाता है। इसकी मिसाल आप ये देख लें कि हमारे वली दक्कनी एक शायर थे, वो 1668 में पैदा हुए, तो 1834 में उनके बारे में गारसा वितासी ने किताब लिख के बताया कि उनका अदबी मकाम क्या है, हालांकि सदियों खाक पड़ी रही उनके काम के ऊपर। इसी तरह देखें आप नजीर अकबर आबादी, जिनको आप नज़म का सबसे बड़ा शायर कहते हैं, जी, वो बिल्कुल। 1835 में पैदा हुए थे, लेकिन डॉक्टर फीलन ने उनके अदबी मकाम का जिक्र किया और बताया कि उनका अदबी मकाम क्या है। मैं समझता हूँ कि अदब जो है वो खुद एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा हथियार है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये आपका जो मौजू है ये ठीक है, आप इसी बहाने से हम बात कर रहे हैं। तो सियासत जो है ना, सियासत अदब की साथी है, सियासत अदब की मदद करती है। जिस सियासत की आप बात कर रहे हैं ना, जो जिस तरीके से मैंने समझा है, जो अभी तक जो बात हुई है, ये सियासत हमारी अपनी शायरों की सियासत है, हमारी अपनी तंजीमों की सियासत है। इससे अदब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अदब लिख रहे हैं, जो जो जिनका तख्लीकी काम जारी सारी है, उनको किसी चीज की परवाह नहीं है और वो अपना काम करते जा रहे हैं। उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, उनको वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और वक्त साबित करेगा कि उनका काम कैसा था। जैसे पहले बहन ने बात की है कि वो अहमद फराज ने क्या कहा था कि वक्त जो है वो सबसे बड़ा जो है वो आईना है, बता देता है कि क्या है। जहां तक आपने मुझे ये पूछा मसीही अदब के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि मसीही भी बहुत काम कर रहे हैं और हर लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितना उनको मौका मिलता है, जिस हद तक। जैसे हमारे अब देखे ना, ये आसनाद बाजी है, इनका अच्छा काम है, ये डॉक्टर प्रिया तबीता, इनका बड़ा अच्छा नाम है, काम है। तो डॉक्टर आदिल मीन साहब यहाँ पे बताते खुद यहाँ बैठे हुए हैं। फिर नजीर कैसर साहब जो है हमारे, जो टॉप के शायर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, कोई 2-4 ही होंगे, उनमें उनका नाम है। तो मैं समझता हूँ कि मसीही अपना काम कर रहे हैं और सियासत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सियासत बेचारी खुद, सियासत को तो हम खामखा बदनाम कर रहे हैं, सियासत तो खुद एक इबादत का नाम है। सियासत को तो, सियासत में तो आप देखें ना, अदब के जो अब जो शायर हैं, उनके जो अशार हैं, उनको मशहूर करने में सियासतदानों का काम है। अब असेंबली में देखते हैं कितने बड़े बड़े शायर जो हैं, उनको वहां पे मुतारफ कराया जाता है उनके अशार की वजह से। अब हबीब जालब जो है, उनकी नज़में जिनके खिलाफ लिखी गई वो भी पढ़ते हैं, और जिनके हक में लिखी गई वो भी पढ़ते हैं। फयाज को भी ऐसा ही है। तो इसलिए मसीह जो है वो भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, जो नगमे लिख रहे हैं, जो मसीही गीत लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, डॉक्टर आदिल मीन की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि जो लिखने वाले हैं, जो खासतौर पे गीत लिखते हैं, उनको चाहिए कि जो हमारी डॉक्ट्राइन है, हमारा जो जो हमारी बाइबल है, जो हमारा, ये समझ लें कि हमारा मजहबी, जो हमारी टीचिंग है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो हमारी मजहबी, जो हमारी टीचिंग है, उसके उसी में रहते हुए हमें गीत तख्लीक करने चाहिए। बहुत से गीत ऐसे हैं कि जो वाकई लगता है कि वो जिस बंदे ने लिखे हैं उसने पता नहीं किस हिसाब से लिख दिए हैं, लेकिन तो भी
ज्यादातर अच्छा ही लिखने वाले लोग हैं। असल में अदब जो है, अदब सिर्फ इतना अदब नहीं है कि बा अदब बा मुलाजा होशियार या उसमें अदब में खड़े हो ना, ये अदब का सिर्फ ये अदब नहीं, आज अदब जो नया अदब है वो इनकलाब का भी काम करता है, जिसको हम मज़ामती कहते हैं, जो मज़ामती शायरी कहते हैं। मतलब आज हमारे पास जुल्म और जबर हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ किससे, जो भी हमारे पास, चाहे वो नज़्म का है, गज़ल का है, चाहे किसी अफ़साने का है, किसी का भी, असल में शायर हो गया या अदीब, वो वक़्त का अमीन जिसको कहते हैं, वो या एम्बेसडर होता है। वो ही कह रहे हैं कि आज क्या हमारे अदब में ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो कौम की ज़हनी, फ़िक्री, माशरती, माशी उसको ला रही है। असल में ये है कि सियासत का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो है वो हल निकालना। तो ये अदब जो है, अदब और सियासत का तो मिला-जुला बहुत गहरा तल्लुक है, लेकिन सियासत अगर अदब में घुस जाए तो फिर खराबी है। जी, सर ये जो आप सियासत जिसको आप नाम ले रहे हैं ना कि सियासत अगर घुस जाए, जी, ये सियासत नहीं है, ये हमारे रवैये हैं। जी, इसको सियासत नहीं हम कह सकते कि ये सियासत है। सियासत जी, तो जी। इटसेल्फ हुँ, एक बड़ी पाकीज़ा चीज़ है, एक बड़ी हुँ, पाइज़ चीज़ है। एक सियासत तो वो है कि किसी गवर्नमेंट है, वो किसी सिटी की, किसी स्टेट की, किसी मुल्क की या मुल्कों चले से मुल्कों अ, की, मतलब उसका वो तय्यन करती तारिक है, साहब लोगों के लिए तारिक रास्ता साहब दिखाती है। तारिक साहब यहाँ तो ठीक है, लेकिन जो मैं जी। बात कर रहा था, क्या आज माशरती या फ़िक्री या माशरती या इस मेयार को बेहतर करने में हमारा अदब कोई किरदार अदा कर रहा है? ज़रूरत तो देखिए गुंजाइश तो हमेशा होती है कि जी। बेहतर से बेहतर हो, लोग हुँ, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हुँ, कर रहे हैं, हुँ। अफ़साना भी लिख रहे हैं, गीत भी लिख रहे हैं, जी, गज़लें भी जी, लिख रहे जी। हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। शायरी भी कर हुँ, रहे हैं, नज़्म भी हुँ, लिख रहे हैं। और हुँ, जहाँ तक ये है कि गुंजाइश तो हमेशा होती है बेहतरी की, बेहतर हुँ, से बेहतर करना चाहिए, लेकिन मेरे हुँ, ख्याल में जो भी हमारे शुअरा-ए-किराम हैं, जो अफ़साना निगार हैं, वो हुँ, मौजूदा मुआशरे के लिहाज से, समाज के लिहाज से, हुँ, समाज की मुश्किलात के लिहाज से अपना काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। जहाँ तक रवैयों की बात है, लड़ाई-झगड़े की बात है, मैं फिर भी समझता हूँ, मैं फिर भी पॉज़िटिव हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मसीहों में भी कोई इतनी ज़्यादा कोई गिरोह बंदी है। मैं तो समझता हूँ सब एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, काम करते हुँ, हैं। हुँ। जहाँ बुलाया जाता है लोग जाते हैं। बेशक छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात होते भी हैं, तो भी एक-दूसरे की रिस्पेक्ट हम करते हैं। जी, कविता साहबा, ये जो इतनी सारी बात हुई, ये सारा जो इतनी बात हुई, इनके मतलब ये है कि हमारा जो मसीही अदब है, हम ओपन एक बड़े ग्लोबल की तरफ नहीं जाते। वैसे तो एक मसला पूरी दुनिया का मसला है कि इस वक़्त अदब जो है सियासत के चुंगल में है, माने या ना माने, माने हाँ, या ना माने, अदब जो है वो सियासत के चुंगल में है, सियासत उसको अदब को इस्तेमाल करती है। तो आप क्या कहेंगे, ये जो गुफ्तगू अभी हमारी गुफ्तगू हुई है, आपके क्या ख्याल में? आप तो माशाल्लाह बड़ा नाम है आपका। बहुत शुक्रिया। जी, प्रिया साहबा। बात फिर वही है कि मैं काफी तफसील से बता चुकी हूँ। देखिए, अदब तो इस्लाह का और तहजीब का नाम है, लेकिन ये जिस सियासत की बात हो रही है, हुँ, आप कह रहे थे कि अदब में सियासत नहीं है, जिसमें भी वो बात हुई, तो ये है कि अगर अदब में नहीं है तो अदीबों में तो है ना। मसला ये है कि जिस अदीब में सियासत है उसके अदब में भी सियासत होगी। तो उससे सियासी होने से यही मुराद नहीं है कि कोई मतलब वो हथियार लेके ही आ जाए कहीं। ज़ाहिर है ये जो लफ्ज़ों की जो मार होती है वो ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। तो मतलब तंज़ करना ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में या सरीहन भी ये सियासत ही तो है, और क्या है। तो ये ठीक है, हम लोग भी जैसे तारिक साहब कह रहे थे कि वो पॉज़िटिव सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। हम भी वही कुछ बता रहे हैं जो देख रहे हैं। अगरचे मेरा इस तरह की जो अदबी महफ़िल है उनमें आना-जाना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है देखती तो मैं भी हूँ, सुनती तो मैं भी हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि हम लोग भी नेगेटिव नहीं है, हम सिर्फ़ वो तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो दिखा रहे हैं, और किसी पे कोई तंज़ नहीं कर रहे। हम में से किसी ने भी किसी का कोई ऐसा कोई नाम नहीं लिया। अगरचे हम जानते होंगे ज़ाहिर है, लेकिन जो अख़लाक़ी तकाज़े हैं वो हमें पाबंद करते हैं कि हम इस तरह से किसी का नाम लेकर किसी की तज़लील ना करें। तो मेरा ख़्याल है कि बात फिर वही है कि हमें अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। जो लोग भी इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, देखिए अदब को नुकसान तो नहीं पहुँचाना ना, हम लोग चूँकि अदब से वाबस्ता हैं।
تو ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو بھی تخلیق ہے، تنقید ہے، تحقیق ہے، جو کچھ بھی ہم تخلیق کر رہے ہیں اس سے فائدہ پہنچے، اس سے ہمیں بھی ذاتی طور پر فائدہ ہو، کہ اس سینس میں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جیسے وہ طارق صاحب بھی کہتے ہیں، یہ جو ادب ہے یہ تو عبادت ہے نا، تو اس میں ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہوتا. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں اپنی اپنی سطح پہ کام. بات صرف یہ ہے کہ جہاں بھی کہیں یہ کھینچا تانی چل رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آج ہم اسی مقصد کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں نا، کہ اس موضوع پہ بات کریں کہ یہ جہاں کہیں بھی یہ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ قداور ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں کم درجے کا ہے، تو پھر اسے اس کو اپنی سرگرمیوں سے ثابت کرنا چاہیے نا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے. وہی جو سیاست جس کو ہم منفی کہہ رہے تھے، اس کو مثبت بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. مطلب نئے اسالیب سامنے لائے جا سکتے ہیں، صنائع بدائع کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اردو زبان کے ذخیرے کو وسیع بھی تو کیا جا سکتا ہے. جو پہلے وقتوں میں جو اردو ادب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جو مار کے ہوتے تھے، جو یہ معاصرانہ چشمک تھی، اس میں تو لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ادب تخلیق کرتے تھے. کافی رقیق کا استعمال ہو یا بحر کا استعمال ہو، اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی تھی. تو اس میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ادب کو فائدہ ہوا، اردو ادب کا ذخیرہ وسیع ہوا. تو جو لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج کا جو قاری ہے، آج کا جو بھی فرد ہے، وہ بڑا شعور ہے، وہ سمجھتا ہے. اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قداور ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود سمجھتا ہے کہ کون قداور ہے. دیکھیے، جو بھی ہماری تخلیق ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہم سامنے لے کر آتے ہیں، وہ پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے. اتنا تو باشعور ہے آج کا فرد کہ وہ یہ سمجھ سکے. اس لیے بات پھر وہی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اسے سیاست کہیں یا رویہ کہیں، جو بھی ہے. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اسے پریا تبدیل صاحبہ، کرنا چاہیے. پریا صاحبہ، یہ جو جی ایک اس کے ساتھ ہی تعلق ہے اس کا گہرا کہ ادب سیاست کی زد میں، اس میں جو اس تناظر میں سوشل میڈیا کا ایک کیا کردار آپ دیکھ رہے ہو؟ سوشل میڈیا، اس کووڈ نے سوشل میڈیا بہت بڑا واسٹ کر دیا ہے. ہر دوسرا آدمی سوشل میڈیا پہ آ گیا، ہر کسی نے جو ہے وہ اپنے اپنے چینل بھی کر لیے ہیں. اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ ادب سیاست کی زد میں ہے؟ یہ میڈیا اس میں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کا کردار تو مثبت ہی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہی جو ہمارا موضوع ہے کہ اس طرف جائیں. پہلے خیر میں مثبت کی بات کرتی ہوں. اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی آن لائن جو تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کو موقع مل رہا ہے. جو مجھ جیسے لوگ جو ویسے جن کے لیے آنا جانے کے مسائل ہیں، یہ میں زیادہ آتی رہتی نہیں ہوں کسی بھی طرح کی تقریبات میں، تو میرے لیے بھی یہ سہولت ہے. تو اس حوالے سے تو سوشل میڈیا کا کردار بہت مثبت ہے. جس طرح کے حالات ہیں کووڈ کی وجہ سے، اس میں بھی یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ کانفرنس بھی ہو رہی ہے، کہیں وہ لوگ مشاعرے بھی منعقد ہو رہے ہیں. اس طرح جیسے آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس طرح سے ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، تو بہت اچھا ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو ہم سیاست والی بات کریں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب کوئی شاعری کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے، کوئی اپنی کوئی پوسٹ لگاتا ہے، تو اس میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا کہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کہا ہے. مطلب اگر میرے روابط ہیں کسی سے، میری پوسٹ کو کوئی لائک کرتا ہے، کمنٹ کرتا ہے، تو میں کروں، ورنہ مجھے کیا کوئی کچھ بھی کہے. تو یہ بھی تو سیاسی ہے نا، تو یہ بھی سیاست ہی ہے. دیکھنا تو یہ چاہیے کہ کیا کہا گیا ہے، بات کتنی پرتاثیر ہے، یہ دیکھنا چاہیے. تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایسے تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر. تو بہرحال سوشل میڈیا کا تو کردار جو ہے وہ مثبت بھی ہے، اور یہ پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ہی رویوں کی وجہ سے وہ منفی بھی ہو جاتا ہے. منفی بھی آ جاتا ہے. صحیح ہے. جی ایسٹر صاحبہ، آپ آسمت صاحبہ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. ان سے جو سوال کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ادب میں، شاعری کی صنف میں ہمیں زیادہ نیچرل پالیٹکس نظر آتی ہے، یعنی زیادہ انہرنٹ پالیٹکس نظر آتی ہے، جو زیادہ نیچرل ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ پوئٹری کی صنف میں کیوں زیادہ ہے؟ باقی صنفوں میں نظر آتا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں ہے. پوئٹری کی صنف میں زیادہ نظر آتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کتنے انقلابات بھی پوئٹری کی وجہ سے، اس میں جیسے علامہ اقبال کی شاعری کی بھی ایک بڑی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ایک بڑا انقلابی ایک بیہیویئر اور ایک بڑا ایک سکھانے والا بیہیویئر تھا.
तो ये आखिर पोइट्री की सन्फ में ही क्यों हमें ज्यादा नजर आता है? अदब में शायरी की सन्फ जो है कि एक अपनी अहमियत है। जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि शायर जो पैदा होता है बनाया नहीं जाता, बनाया नहीं जा सकता, शायर होता है। और इसमें मतलब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द शायरों के मतलब शुरू से लेकर जब तक मतलब हुमर से लेके सदियों पहले से लेके शायरी जो है वो चल रही। इवन के बाइबल की 5 किताबों का हम समझते हैं कि वो नसरी शायरी है। तो शायरी जो है वो तो खुदा ने भी की है और उसके बाद इंसानों ने भी की है, और दाऊद नबी ने उस शायरी को गाया भी है। तो ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। तो इसमें मतलब जो चीज ज्यादा है इस दुनिया में, लाज़मी बात है उसमें वो चीजें भी, वो एलिमेंट्स भी शामिल होते जाते हैं जो हमारे अंदर मनफी चीजों को जन्म देते हैं। शायरी में भी मतलब हम इवन के इंग्लिश शायरी के बारे में उन जमानों के दौर को भी पढ़ें तो उसमें भी मतलब जो बहुत अच्छा लिखने वाले थे उन पे तनकीद भी की जाती है। हैरत होती है कि इतने इतने बड़े शायरों के लोगों के नाम हम जब पढ़ते हैं, ये सियासत थी। अब सियासत को समझने की जरूरत है। हम समझते हैं कि शायद सियासत कैसी बुरी चीज है। सियासत अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो डिपार्टमेंट के तौर पर ये सियासतदान है, सियासत करते हैं, हुकूमतें बनती हैं, सारा कुछ चलता है। अब सियासत एक रवैये का नाम भी है। वो रवैया क्या है कि जब हम किसी चीज को मस्बत शायरी में अगर हमारे रवैये मस्बत हैं तो हम समझते हैं। अब अगर हम मनफी सोचते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें सियासत आ गई है। हम मतलब शख्स ये जो है ये शख्स तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बात नहीं कर रहा है, ये मनफी रवैया है हमारा। लेकिन अगर भी शायद जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में बात की गई कि उन्होंने इनकलाबी शायरी की और उन्होंने दुनिया की सोच को बदल दिया, ज़हन को बदल दिया, तो वो एक मस्बत बात आ जाती है उसमें सिलसिला। जैसे अभी उन्होंने बात की हबीब जालत की कि उसकी शायरी ने मतलब इनकलाब जो है वो बर्पा किया। तो ये चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द। अब मैं बात इस तनाजुर में नहीं करना चाहती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द क्योंकि हम एक अक्सरियत में रहते हैं, तो अक्सरियत में तो ये चीजें मतलब हैं, ये सारा हमें ये देखना है कि हम जो मसीही हैं बहसियत कौम हमारे अंदर जितने लिखने वाले हैं, पहली बात मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि हम में बहुत कम लोग हैं जो अदब के मैदान में हैं। मतलब जितनी हमारी आबादी है मैं नहीं जानती कि उसमें दिलचस्पी नहीं ली जाती या शायद इस चीज को वो जरिया इज्जत नहीं समझते, इसलिए वो अदब की तरफ बहुत कम आते हैं। हमारी मतलब अब कुछ खवातीन नजर आने लग गई हैं, वरना बहुत कम खवातीन अदब के मैदान में थी, और ये भी एक दुख की बात है। मर्द हमारे मतलब शायरी में आते तो बहुत हैं, लेकिन किसी हद तक उनका नाम बनाना, उनका मतलब एक नाम लिखना रखना, और वो भी मेन स्ट्रीम में, वो तो बहुत कम है, बहुत मतलब सीधा लोग। चलिए दुख की बात यह है कि मसीहों में लोग कम हैं, राइटिंग की तरफ आते कम हैं, और फिर जो हैं अगर वो भी इन मनफी रवैयों का शिकार हो तो हमारी सियासत कहाँ जाएगी? मतलब सियासत जो है वो जब चलेगी इसमें तो कैसे, मतलब मैं तो बहुत इस मामले में अक्सर दुखी हो जाती हूँ। खुदा करे हमारे लोग जो हैं जो इस सिलसिले में आए हैं सियासत को एक तरफ रखें और अदब की खिदमत करें, अदब की आबियारी के लिए काम करें, ज़हनों को तैयार करें, सोच को तब्दील करें और ऐसी नस्ल तैयार करें जो हमारे लिए बाइसे फख्र हो। और मतलब हम जो कुछ करना चाहते थे कर लिया या कर रहे हैं, लेकिन आइंदा नस्लों को तैयार करें, आइंदा नस्लों की ज़हनों की आबियारी करें। अदब बाअदब बनाता है, ये मेरा मानना है, और बाअदब हम बन सकते हैं अगर हमारा अदब काम करेगा। आसना साहबा, आप एक कॉलमिस्ट भी हैं, बहुत सारे कॉलम आपने अखबारात में लिखे, जो बुक की शक्ल भी इख्तियार की। बहुत सारा हमारा अपना जो प्रिंट मीडिया है, जो मैगजीन निकालते हैं या अखबारात निकालते हैं, अखबारात तो बराए नामी है लेकिन मैगजीन बहुत, क्या आपको नजर ऐसा नहीं आ रहा कि मखसूस तबका है और पसंदीदा हैं
दूसरों को नए को जगह नहीं दी जाती, अगर नए ने को बनाई है तो खुद ही जगह बनाई है, उन्होंने कतई नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एक मखसूस 5, 6, 7, 8 राइटर रखे हुए हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। एक दफा मोहतरमा नीलमा नाहिद दुरानी साहिबा ने रॉयल टीवी पे मुझसे सवाल किया था कि क्या किसी ने आपका रास्ता रोका आगे बढ़ने से, तो मैंने नहीं, ये अलग बात है, ये अलग बात है। अगर कहें तो मैं नाम भी ले सकता हूँ जो एग्जाम्पल मेरे सामने है। सिर्फ उन्होंने मखसूस राइटर रखे हुए हैं, किसी यंग को नहीं जगह देनी, अपने कम्युनिटी के मैगजीन। कम्युनिटी के मैगजीन की तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि मैं बहुत कम शायद मैगजीन में असल में बात यह है कि मीडिया जो होता है एक सोर्स होता है जो अदब को फरोग के लिए काम करता है। प्रिंट मीडिया और या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये अदब के फरोग में एक अहम काम करता है। अगर उसमें तासब आता है या वही सियासत आती है कि फलां को नहीं सियासत नहीं आई, सियासत तो वैसे मनफी रवैयों का नाम ही सियासत है यहाँ पे। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो लिखने वाले हैं, मोस्टली लिखने वाले हैं, आप उनकी शायरी या उनकी तहरीरें उठा के देख लें, मतलब अगर हम उसका मुआवजना किसी दूसरे अपने जो हमारी अक्सरियत है उनके राइटर्स के साथ करें तो वो अदब में जगह पाने के काबिल नहीं होती वो चीजें होता है। जिस तहरीरों में दम है वो अपनी जगह बनाती है, जिसकी तहरीर में दम है, जो लिख सकता है, जो लिखता है, जिसे ओजान का बहूर का पता है, जिसकी शायरी में दम है, जिसकी नसर में दम है, वो चीज जगह पाती है, उसे जगह मिलती है और उसे जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग अगर ये शिकवा करते हैं जी हमें तो हमारे मैगजीन जो है वो हमें जगह नहीं देते, तो वो ये भी तो देखें ना वो लिख क्या रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब एक राइटर ने कहा था कि एक सफा लिखने के लिए मुझे 100 सफे पढ़ने पड़ते हैं। हमारे लोग कितना मुताला करते हैं, हमारे लोग जब लिखते हैं तो क्या सोच के क्या लिखते हैं। मतलब अभी डॉक्टर आदिल अमीन साहब बात कर रहे थे गीतों के बारे में कि उनको बाइबल का पता नहीं और वो गीत लिखते हैं, और ये सही बात है। ऐसी ऐसी चीजें लिख मारते हैं लोग कि आप सुने तो आप सवाल सोच के कुछ नहीं कर सकते कि इन्होंने क्या लिखा है। हमारे लिखाई जो है जब ये दुख का इजहार करते हैं कि हमें जगह नहीं मिल रही या हमें मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो वो ये भी तो देखें उनका मुताला कितना है और जो कुछ लिखे क्या वो किसी से इस्लाह ले रहे हैं, क्या वो किसी अपने सीनियर को दिखा रहे हैं, क्या किसी को पता चल रहा है कि वो क्या वो चीज ऐसे आसना साहबा बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इस वक्त टीवी के क्रिश्चियन टीवी के ड्रामे बड़े बड़े जियो पीटीवी उन पे ड्रामे लिख रहे हैं, लेकिन उनकी कौम उनको पूछती भी नहीं है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो उनको अपना मीडिया घास नहीं डालता प्रिंट मीडिया, और वो दूसरे जो स्ट्रीम मीडिया उसमें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है ना, तो ऐसा चलता है। आगे बढ़ते हैं फिर आपको आपका बात करते हैं, आपके व्यूज लेते हैं। हाँ जी एस्टर साहबा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आदिल अमीन साहब से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। अभी जैसे असना साहबा ने कहा कि हमारे जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में कम है। अब आखिर इसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि जब वो कम्युनिटी बेस्ड काम करते हैं, मेन स्ट्रीम में आने के लिए उनके पास क्यों चांसेस, मतलब वो क्यों नहीं आ पाते? क्या उनको चांस कम मिलता है? अभी जैसे इन्होंने ये भी कहा कि शायद उनकी स्टडीज जो है वो शायद, या उनका जो लेवल ऑफ स्टडीज है वो इतना नहीं होता। तो इस बारे में आप उनको कौन गाइड करेगा? कौन उनको मेन स्ट्रीम में आने के लिए जो है वो एक गाइडलाइन देगा, या किस तरीके से हम, यानी सवाल मेरा ये कि जब वो कम्युनिटी बेस्ड काम कर सकते हैं तो वो मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ सकते या क्यों नहीं आते? इसका क्या रीजन है? इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे वो एटलीस्ट इस मेन स्ट्रीम में दाखिल हो सके या कुछ कर सके, या कौन इसके जिम्मेदार और है जो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं? आदिल साहब क्योंकि ये इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है तो क्वेश्चन ऐसा रह ना जाए, मैं उसके साथ ही जोड़ता हूँ, इसको कहते हैं नथी करता हूँ कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी में खुद साख्ता अदबा और शारा मौजूद है, इसको भी साथ ही कर ले क्योंकि टाइम हमारे साथ बहुत कम हो गया जी। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इसको मैं इस बाद वाले हिस्से को पहले ले आता हूँ कि खुद साख्ता शुराकराम या लिखने वाले कुछ बातें जो है वो
यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है उन सेंटेंसेस को, कि जैसे हम कहते हैं कि जी माँ तो माँ ही होती है। अब माँ तो वो भी होती है जो अपने बच्चों को कचरे में फेंक देती है। तो ये जो रवैये हैं कि लिखने वाले मेन स्ट्रीम तक क्यों नहीं पहुंचते, पहली बात तो ये है कि उनका मेन स्ट्रीम तक जाना क्यों जरूरी है। अगर वो मयार पर लिखेंगे तो वो मेन स्ट्रीम ही है, लेकिन जो लोग मेन स्ट्रीम तक पहुंचते हैं, मेरा सवाल उनसे है कि वो वहां पर अपने साथ कितने लोगों को ले जाते हैं। ये है वो सियासत जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। अब देखें कि जो कौमें, जिंदा कौमें होती है ना, जो कौम होती है, क्राउड की बात छोड़ दें, जो कौमें होती हैं उनके नजरियात भी मजबूत होते हैं। जब बनी इसराइल को असीर करके बाबल ले जाया गया, तो बाबल में वहां पर कुछ लोगों ने उनसे डिमांड किया, उनके साज देखकर, कि हमें कुछ नगमा सुनाओ, कुछ हमें मौसीकी सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि वो देखो, हमने अपने साज जो है वो दरख्तों के साथ लटका दिए हैं क्योंकि हम गुलामी की हालत में हैं। तो क्या गुलामी की हालत में किसी के अंदर से नगमा निकलेगा, कोई गीत निकलेगा? हम लोग लिखते चले जा रहे हैं, हम आजाद सब। ये अब वो बात आ गई, आपने टीवी चैनल्स का जिक्र किया। सियासत ये है, सियासत अदब को यूं मुतासर करती है कि मैं लिखता हूँ साया दें हम या समर काट दिए जाते हैं, हम भी कैसे हैं शजर काट दिए जाते हैं, हम बराबर के हैं शहरी तो बता दे क्यों कर, जान कर गैर बशर काट दिए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, हमारे जो टीवी चैनल्स चल रहे हैं वहां से नारा उठता है कि जी पाकिस्तान के मसीहियों को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, पाकिस्तान के मसीही तो बड़े खुशखुर्रम हैं। तो मेरा अदब तो गया ना खाक में। जो कुछ मैंने लिखा, मैंने जिस बात पर मज़ाहमत की, मैंने जिस बात की मजम्मत की, वो तो सारा कुछ ज़ाया हो गया। तो वो ज़राए जो हमारे मतलब मुतवाज़न खड़े होकर हम ऑपोजिट बात करते हैं, वो असल में हमारी काविशों को ज़ाया करते हैं। और मेन स्ट्रीम में जाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए की दलेरी होनी चाहिए कि वहां पर हम जाकर, हम वहां पर सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाते हुए घबराते हैं कि कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकल जाए कि किसी को ये पता चले कि हम क्रिश्चियन हैं। ये बात आप इस बात से एग्री करेंगे कि हत्तल वसा कोशिश होती है लोगों की कि जिसे हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, वहां जाकर हम अपनी शनाख्त छुपा सकें। जब जहन ही ये है कि हम अपने आप को छुपाएं, तो फिर हमारे अदब में जितनी चीजें होंगी उन पर भी कोई ना कोई कोटिंग हुई होगी। हम भी कहेंगे कि हम बहुत खुश हैं, हम भी यही लिखेंगे कि हम आज़ाद हैं। देखें, यहाँ पर जो हमें नुकसान है, पाकिस्तानी मसीही राइटर को जो नुकसान है वो ये है कि जब यौम आज़ादी का प्रोग्राम होगा और उसमें शुरा कराम को बुलाया जाएगा कि आप यहाँ पर आए और मिली नगमात पेश करें, वो हम जिस आज़ादी की बात करते हैं वो रियासत की आज़ादी की बात करते हैं जो 1947 में हमें मिली। वो मुसलमानों को, मसीहियों को, सिखों को, जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबको मुश्तरका तौर पर मिली। हम उस आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन जब हम बतौर मसीही, ये कितनी बातें मेरे पास इस वक्त नोट हैं, अक्सरियती आज़ादी में और अकलियती आज़ादी में बहुत फ़र्क है। हम ज़ेरे तसल्लुत हैं, हम गुलामी की हालत में हैं और हमारे साथ जो कुछ सलूक होता है उस पर अगर हमारा कलम नहीं उठता, उसको हम अगर ज़ब्त तहरीर में नहीं लाते, तो हम बजाते खुद सियासत का शिकार हैं। ना सिर्फ जद में हैं बल्कि शिकार हैं इसका। अब शायरी में अगर हम मोहब्बत का जिक्र करते हैं तो क्यों ना हम अपनी सेकुलर शायरी में भी मसीही मोहब्बत का जिक्र करें। इसके लिए गीत लिखना जरूरी नहीं है कि हम चर्च के लिए गीत लिखें और उसमें मसीह की मोहब्बत का जिक्र करें। हमारी उमूमी शायरी में भी अगर पड़ोसी के साथ ताल्लुक का जिक्र है तो वो हमारे जाविये से होना चाहिए, हमारी डॉक्ट्रिन के जाविये से होना चाहिए। ये बहुत सी बातें हैं। अब खाकरोब की आसामी, खाकरोब के लिए आसामी निकलती है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होता है मसीहियों के लिए। हम इस बात पर कब एहतजाज करेंगे? ईसाई लिखा हुआ होता है, चले उनका बस नहीं चलता, वरना तो वो पता नहीं क्या कुछ लिख दें। तो ये जो अदब की जिम्मेदारी है, हम सियासत की जद में भी हैं, हम सियासत का मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन आम मुशायरों में हम एहसास कमतरी का शिकार लोग रोमांटिक शायरी लिखकर ले जाते हैं, वहां पर वाह वाह हो जाती है, दाद मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोग ये अंदाजा लगाएंगे कि शायद इनकी लव मैरिज हुई होगी। इससे हमारी कौम को कोई फायदा नहीं होता।
ہمیں اس سیاست سے جو ریاستی سطح پر ہے اور اس سیاست سے بھی جو تنظیموں کی سطح پر اور ادیبوں کے کام کو روکے ہوئے ہے، ان سب، ابھی آپ نے جاوید صاحب ذکر کیا کہ کچھ میگزینز ہیں جن کے پاس مخصوص رائٹرز ہیں، وہ میں بڑی دلیری سے یہ بات یہاں پر کہوں کہ وہ ان کے رائٹرز نہیں، وہ ان کے ڈونرز ہیں. صحیح، بالکل دیٹ از دا ریزن کہ کسی پانچویں آدمی کو موقع نہیں ملتا. تو یہ سب سیاست ہی ہے نا. ہم ایک دوسرے پر ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں. ایسے میں ادب کیسے پنپنائے گا، کیسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا ادب، آج کے لوگ جو ہیں وہ رفتگان کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے کہ پچھلے لوگوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، اور موجودہ دور کے وہ لوگ جو معیار کو جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. معیار کی بات کرتے ہیں، ہماری کتابیں لائبریری میں رکھنے کے لائق نہیں ہوتی، ہم نصاب کا جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور اسے تعصب کا نام دیتے ہیں کہ یہ تعصب ہے. تعصب نہیں ہے، وہ کتاب جہاں پر ہے وہ وہیں پر رہے گی، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہار ڈالنے کے شوقین ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کتاب کی رونمائی میں 40 لوگ آگے تھے، ہماری کتاب جو ہے نا اب یہ انڈیا تک پڑھی جائے گی، بچے بھی پڑھیں گے، ازبر ہو جائے گی ان کو. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ادب، ہر دور کا ادب کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہر دور کا ادب کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہ ڈیمانڈز ہم بغیر مطالعہ کیے کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے. یہاں جس کے شعر بے وزن ہوں، آپ ذرا اسے ایک دفعہ کہہ کے دیکھ لیں کہ یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، وہ زندگی بھر کے لیے آپ کا دشمن ہو جائے. تو جب ہم غیر معیاری میدان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تو مین سٹریم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ہم خوش ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مشاعروں میں، اپنی اپنی تنظیموں میں، اپنے اپنے عہدوں پر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایسٹر صاحبہ، طارق جاوید صاحب کے پاس آپ کے لیے کیا کوشچن ہے؟ میں بھی ساتھ تھوڑا سا ان کا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی بس ابھی جو طارق صاحب ہیں ان سے تو میرا جو سوال وہ یہی ہے کہ جو ادبی سیاست، ادب سیاست کو اہمیت دے مگر سیاست کا پروردہ نہ بن کر رہ جائے. کیا اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ ادب جو ہے وہ سیاست کو اہمیت دے لیکن اس کا فالوور نہ بن جائے، اس کا پروردہ نہ بن جائے. جی طارق صاحب، میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ میرے کانوں نے ایسی آوازیں سنی ہوئی ہیں بڑے بڑے لوگوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سیاستدان ریٹائر ہو جاتے ہیں تب وہ ادب کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ساتھ یاد رکھیے گا. اچھا، سوال جو آپ کا ہے نا وہ صرف اس سوال کی حد تک تو رہا جا سکتا نہیں، بہت سی باتیں کرنے والی ہیں جو اس پروگرام کے حوالے سے کرنی چاہیے بات. ہاں جی، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ادب ہے، ادب کو جانچنے والے، پرکھنے والے، اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے کہ کون سا ادب اچھا ہے، کون سا ادب اچھا نہیں ہے، کون سا مین سٹریم پہ آ سکتا ہے اس معیار پہ، کون سا نہیں. یہ تو ہر زمانے میں رہا ہے. جس دور میں ربندر ناتھ ٹیگور کو ملا تھا، نوبیل ملا تھا، تو مجھے بتائیں اس کے جو کنٹمپرری جو پوئٹ تھے، علامہ اقبال تھے، جن کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے تنقید کی تھی. وہ تو ایک بنگلہ، ایک زبان میں، ایک مخصوص زبان میں انہوں نے شاعری کی، اور ایک چھوٹی سی کتاب تھی گیتانجلی، جس کا انہوں نے انگلش میں ترجمہ کیا اور اس کو انہوں نے نوبیل دے دیا. اس کا کیا معیار تھا؟ اب یہ جو پرکھنے والے ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی پیمانہ ہے، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس ادب کو کس جگہ پہ کھڑا کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں ادب برائے ادب کے قائل ہیں، بہت سے لوگ ادب برائے زندگی کے قائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسیح ہیں، ہمیں صرف اپنے مسیح ہونے پہ ہی نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں جب شاعر ہے تو وہ سب کا شاعر ہے، وہ صرف مسیحوں کا شاعر نہیں ہے. ایک ادیب ہے تو سب کا وہ ادیب ہے. جی جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں زیادتی ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی ہمیں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اس میں ہم کوئی جو مسیح ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ہمارے ساتھ امتیاز ہیں، لیکن ان امتیازات کو دیکھ کے کیا ہم اسی میں اپنے آپ کو ناپتے رہیں، پرکھتے رہیں، یا ہمیں کسی مخصوص رسالے میں یا ڈائجسٹ میں ہمیں موقع نہیں دیا جاتا تو کیا ہم اس کا رونارا ہوتے رہیں؟ کوئی بات نہیں کو دیتا. تو یہ تو میں نے پہلے کہا کہ خود رو پودے ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کام کو سراہا جائے گا. وہ 50 سال بعد، 60 سال بعد جب تاریخ کا دھارا مڑے گا، جب کوئی مورخ پیدا ہوگا تو جس کا اچھا کام ہوگا، دیکھیں نا جیسے جوشوا فضل الدین، ان کو پنجابی کے پائنیئر میں، افسانے کے پائنیئر میں ان کا نام ہے.
उनका नाम कोई काट नहीं सकता, सिलेबस में उनका नाम रहेगा। जिन लोगों ने खिदमत की है, जिनका काम मयारी है, उनको डरने की जरूरत नहीं है, ना उनको किसी रिसाले की जरूरत है, ना किसी अदबी तंजीम की जरूरत है। वो खुद और पौधों की तरह आगे बढ़ेंगे। उनको अपने काम पे ध्यान देने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। उनको आलमी अदब जो है, मैं समझता हूँ कि आलमी अदब जो है, जैसे पहले कहा कि 100 सफा पढ़ने के बाद 1 सफा लिखने के काबिल होता है, मैं समझता हूँ कि हमको 1000 सफा पढ़ने की जरूरत है। पढ़ें और अपने आप को बेहतर करें। जब हम मुतालिया करेंगे तो हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे। और ये जो रोना है ना, रोना धोना बंद कर देना चाहिए। ये जो मैं समझता हूँ कि हमें ये जो है ना कि हमारे साथ ज्यादती होती है, ज्यादतियां तो अब मुसलमान हमारे जो है वो भी कहते हैं हमारे साथ ज्यादतियां होती है। क्या अल्लामा इकबाल के साथ ज्यादती नहीं हुई? जैसे मैंने पहले कहा, ये तो हर दौर में होता है। तो इसलिए हमें इन चीजों से मावरा सोचना चाहिए। तारिक साहब, यहाँ पे असल में ये ज्यादतियों की बात तो कम हो रही है, लेकिन ये बात ये हो रही है कि जो हमारा अंदरूनी एहतसाल हो रहा है या हमारा अदब जो फरोग पाए, उस अदब को रोकने के लिए तो हमारे अंदर ही मौजूद है लोग जो इसको करने नहीं दे रहे। तो अगर अमन के सफीर जो आप जैसे लोग या दूसरे अगर गलत पॉलिसियों की जो हमारे अंदर पड़ी जाती है उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर तो चलता रहेगा सिलसिला। सर मैं तो इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि कोई किसी अदब वाले बंदे को कोई रोक सकता है। जिसने लिखना है, जिसका काम अच्छा होगा, वो उसको नहीं रोक सकता। ये देखिएगा, अदब लिखना और अदब क्या होता है, अदब जब तक वो सामने आता नहीं है, किसी जगह पे शाया नहीं होता, उसको इजहार नहीं मिलता, दिखाई नहीं देता, तो वो अदब तो अंदर ही रह जाएगा। वो कैसे जगह बनाएगा? सर आज तो सर आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आप जहां मर्जी अपना कलाम छुपवाएं, आपको कौन रोकता है? नहीं मेरी बात सुने। अब ये आसनाद बाजी जो है, ये डॉक्टर किया तबीता या डॉक्टर आदल मीन, इनका नाम क्यों है? क्या नजीर कासर का या डॉक्टर कमर फरोज का नाम क्यों है? क्या वो किसी किताब में लिखते हैं, किसी रिसाले में लिखते हैं? ये लोग देखे ना, इनको सब लोग जानते हैं, इनके काम के हवाले से लोग जानते हैं। इन्होंने कहीं इनकी किसी रिसाले में तो नहीं रोज इनकी शायरी है। ये अभी आगे चलते हैं, क्योंकि मैं इख्तलाफ जो है वो इस वक्त इख्तलाफ राय तो मेरी है जरूर है, क्योंकि मुझे भी अरसे दराज इसी फील्ड में हो गया काम करते हुए। मैं डॉक्टर तबीता साहबा, जब तक इजहार का मौका नहीं मिलता, ये जैसे अभी तो बहुत सारे यूट्यूब, यही शायद वजह होगी कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म खोल लिया कि हमारे कोई जगह नहीं देता तो हम खुद कर लेते हैं। क्या ये दुरुस्त है कि वो खुद साख्ता या खुद वो अपना प्लेटफॉर्म खुद मुहैया कर लेता है? उसका तो कोई कदरदान ही नहीं, उसके कोई कदर नहीं आया। ये सब ठीक है? देखिए, उसमें ये होगा कि कम से कम खुद इंसान की अपनी तसल्ली तो हो जाएगी ना कि मैं जो लिख रहा हूँ उसका इजहार भी कर रहा हूँ। बाकी शुरू में ही बात हुई थी, इसमें जरूरी तो नहीं है कि कोई जवाबी, कोई सिला भी कोई मिले, कोई सताइश भी हो, ये जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल तारिक साहब ने शुरू में कहा था कि अदब तो अदबी खिदमत है, तो फिर उसमें मतलब एक इबादत है, तो फिर उसमें जरूरी तो नहीं है कि सराहने वाले भी मौजूद हो। ठीक है, उससे हौसला अफजाई होती है, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं और इंसान हौसला पाकर और भी उसी मैदान में चला जाता है। लेकिन अगर वो इजहार करता रहे तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि किसी सताइश किसी की परवाह करे। इसी के साथ आज की गुफ्तगू को भी आप प्लीज समेटिएगा ताकि हम इसको वाइंड अप करें। 1 मिनट है, 1 मिनट में आप इसको आज की गुफ्तगू को समेटिएगा, जो किस तरह की गुफ्तगू हुई हमारी। जी गुफ्तगू तो ये सबसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, सबकी, डॉक्टर आदम साहब की, आसना तापी की, तारिक भाई की और एस्टर साहब और आप भी, जिस तरह से अब हम बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ यकीनन सीखने को भी मिला, मालूमात में भी इजाफा हुआ, बहुत सी बातों की तस्हीह भी हुई। तो मैं मुख्तसरन यही कहूंगी कि जो हमारा मौजू था उसकी मुनासबत वैसे ही कुछ अर्सा पहले चंद अशार थे कि ये जो हमारे इख्तलाफात बज़ाहिर जो नजर आते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो 2-3 अशार हैं, मैं उन्हीं से बात को खत्म करती हूँ। मसीही शायर अदीब सारे, मसीही शायर अदीब सारे, हूँ आगही के नकीब सारे, वफा मोहब्बत सलामती की, वफा मोहब्बत सलामती की, चले उठाकर सलीब सारे, ये शर्क से बर्फ तक नुमाया,
یہ شرق سے غرب تک نمایاں ہوں دور رہ کر قریب سارے، مٹا دیں مل جل کے حد فاصل یہ چاہتوں کے حبیب سارے، یہ بزم فکر و نظر سجا کر ادب کا بتلیں نصیب سارے۔ تو بس ایک خواہش ہی ہے کہ یہ کاش یہ جو سلسلہ ہے سیاست کا اور کھینچا تانی کا یہ ختم ہو جائے اور سب لوگ محبت کی، امن کی اور صلح سلامتی کی بات کریں۔ شاید یہی سب سے بڑا اس وقت کا جو اخلاقی تقاضا ہے، وہی وقت کی ضرورت شاید یہی ہے اس وقت۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نہ کچھ جس کی پردہ داری ہے۔ اچھا اسی لیے نہیں، اسی پردہ داری کی وجہ سے تو آپ نے پروگرام کا یہ اس پینل ڈسکشن کا اہتمام کیا اور پھر موضوع ایسا رکھا، یقیناً اس کی ضرورت تھی۔ پردہ داری خیر ابھی بھی پردہ ہے، پردے میں رہ گئی ہیں بہت سی باتیں، شاید وہ ہمیں جو اخلاقی ہماری حد بندیاں تھیں انہوں نے روکے رکھا اور ہم نے آگے چلتے ہیں۔ میں آسنا صاحبہ، اور آپ نے تو کافی، میں اگر کہوں، اگر میں غلط نہیں تو کافی نشیب و فراز بھی آئے ہیں، لیکن آپ کی جو قابلیت آپ کے اندر جو تھا، اس نے اس کو جو نشیب و فراز کو بڑے خوبصورتی سے اپنے علم سے عبور کرتے جا رہی ہیں۔ تو کیا جو آج کا کیا پیغام اس حوالے سے دینا چاہیں گی تاکہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں؟ جی، آج کا پیغام صرف یہ ہے جی کہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی آبیاری کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہمیں ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ ہماری جو نئے نوجوان جو لکھنے کے میدان میں آتے ہیں، ہماری جو زندگیاں ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تاکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، جس قابل بھی ہیں ہم، اور بہت سارے ذہنوں کو تیار کریں تاکہ وہ ادب کے میدان میں آگے آئیں۔ اور ہماری ادب میں جو کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ بہت رائٹرز ہمارے ارد گرد ہمارے نہیں ہیں، تو وہ جو خانہ پر ہو اور بہت سارے لوگ آگے آئیں اور سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ڈاکٹر پریا نے کہا، ہم منفی رویوں سے ہٹ کر سوچ کو تبدیل کریں، ہم دوسروں کے لیے کام کرنے والے ہوں، اور ہماری ذات، ہم شکوہ کرتے ہیں اپنے سے بڑوں سے جو ہم سے پہلے گزرے کہ انہوں نے کتنے ذہنوں کو تیار کیا ہے، کتنے لوگوں کو تیار کیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہم سے یہ شکوہ نہ کریں کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتر کام کریں۔ جی بہت شکریہ امین صاحب۔ آپ اس گفتگو کو ساری کو کیسے سمیٹیں گے؟ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اس فیلڈ میں 30-35 سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، بینگ ایک جرنلسٹ جن کی ہر فیلڈ سے تعلق ہوتا ہے۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ نئے کو ہم نے جگہ دی نہیں ہے، نئے کو نہیں ہم نے جگہ دی، انہوں نے بنا لی ہے لیکن ہم نے جگہ نہیں دینے کی کوشش کی۔ تو بات کو سمیٹنا ہے، کوئی پیغام اگر آپ کا رہ گیا اسی طریقے سے لے کے آئیں۔ 1 منٹ یہاں پر نئے لکھنے والوں کے لیے تھوڑا سا سخت پیغام میرے پاس، میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر، طارق صاحب بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ میرے پاس نئے لکھنے والے جتنے آئے انہیں ہم نے بتایا کہ آپ تھوڑے دن یوں اس طرح سے یہ چیزیں سیکھیں۔ جیسے ہی انہوں نے تھوڑے دن کا ذکر سنا، وہ کبھی مڑ کے واپس نہیں آئے، یعنی وہ سیکھنا چاہتے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جیسے ہوں جہاں ہوں کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ محنت کرنا پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر تو سدھرنا شروع ہوتی ہیں چیزیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے جو لکھنے والے نئے لوگ ہیں، بالخصوص نوجوان، کمپوز بھی ہو جائیں، ہماری غزلیں کمپوز بھی ہو جائیں، کوئی گلوکار ان کو گائے بھی، سی ڈی میں بھی چلے جائیں، یوٹیوب پہ بھی چلے جائیں، وہ ان کا کام کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ اور وہ ہمارے علمی ادبی کاوشوں کے سامنے ایک اور رکاوٹ یہ بھی ہے کہ آپ ایسے لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ ان کے سامنے اخبار رکھ دیں، وہ اس کی بھی دھن بنا دیں گے۔ انہیں وزن بحر یا ان چیزوں سے یا اصناف سے انہیں کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ لیکن نئے لوگوں کو، جن کو ہم نے، ایک تو وہ تھے نا جو 0 میٹر نئے تھے، ایک وہ نئے تھے جن کا تعارف نیا سامنے آیا لیکن وہ لکھتے اچھا تھے، ہم انہیں ہر جگہ پر ساتھ لے کر گئے
ہر جگہ انہیں متعارف کروایا اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں. جی 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 نہیں میں یہی کہ بہت خوبصورت نوجوان بڑے خوبصورت لکھ رہے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں میدان میں, ٹھہرتے نہیں. جو اس طرح سے وہ بس چند دنوں کی بات ہے, بس وہ چلے. جی طارق صاحب آپ کچھ اسپیشل بھی کہنا چاہ رہے تھے اور پیغام بھی دے دیجیے گا. یہ آج قطن یہ آج کے پروگرام کا یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی اکھاڑ پچھاڑ کریں. ہمارا یہ تھا کہ اگر ہم کہیں غلطیاں ہیں تو ہمیں درست کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ادب کو, ادب کے فروغ کے لیے, ادبی مثبت سوچ کو فروغ دینے کے لیے کام کریں, نہ کہ ہم حصوں میں گروہ بندی میں بٹ کے کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے 8-10 رکھے ہوئے ہیں, ساتھ 8-10 کہیں بیٹھا ہوا ہے. سر جی وہ ایک بات ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. مجھے تو کسی سے کبھی شکوہ گلا نہیں رہا, نہ بڑوں سے, نہ چھوٹوں سے, نہ اپنے ہم اثر سے. میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ بار بار بات ہوئی خود ساختہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر ادیب خود ساختہ ہی ہوتا ہے. تخلیق کار خود ساختہ ہوتا ہے, وہ خود اس کے اندر شاعر ہوتا ہے, تو باہر نکلتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کو سیاست سیاست تو ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے, مذہب اس سے بھی طاقتور چیز ہے. سیاست جو ہے وہ سیاست نے مذہب کو ادب کو کیا روکنا ہے, مذہب بھی ادب کو نہیں روک سکتا. اس کی مثال بابا بلے شاہ ہے, ان کا جنازہ بھی نہیں انہوں نے مولویوں نے پڑھا تھا, لیکن آج حوالے کے طور پہ بلے شاہ کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح احمد فراز ہے, ناصر ہے, غالب ہے. اب غالب خود ساختہ نہیں تھا. جتنے بھی شاعر ہیں خود ساختہ ہی ہوتے ہیں, جن کے اندر تخلیق کا مادہ ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہی نکلتا ہے. یہ ادبی تنظیمیں یہ کسی کی مدد کریں یا نہ کریں, جس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ ہی جاتا ہے. اس لیے تھنک پازیٹیو, بی پازیٹیو. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے, آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سارے اپنے بہن بھائیوں کو. جاوید صاحب تگڑے ہوتے رہیں, اپنا کام جاری رکھیں. جی جاوید صاحب میں ایک بڑے دکھ کے ساتھ یہاں یہ کہوں گا کہ ہمارے بھی ایک شاعر تھے, بہت بڑا نام تھا, لیکن ان کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا. وہ کسی غیروں نے جنازہ پڑھا. ضیاء تھے, ان کے بچے کہیں اور تھے, اور بڑا المیہ ہوا, بہت بڑا المیہ ہوا ہماری کمیونٹی کے لیے کہ ان کا جنازہ کسی اور نے پڑھا, کسی اور نے. لیکن سر ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا, ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. بات یہ ہے کہ ان کا کام زندہ رہے گا, یہ بڑی بات ہے. جنازہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کا کام, ان کا کلام ہمیشہ زندہ رہے گا, پڑھا جائے گا لوگوں کے دلوں میں, صدیوں وہ بلائے نہیں جا سکتے. تھینک یو. اب آگے آسٹر صاحبہ, آپ انگلش لٹریچر کی ایک نام ہے آپ کا, کالج میں آپ انگلش لٹریچر کی لیکچرر ہیں. آج کی یہ ساری گفتگو آپ کو کیسا لگا؟ گفتگو تو بہت ہی زبردست رہی ہے, بڑی سیر حاصل رہی ہے, اور یہ تمام جو ہمارے معزز مہمان ہیں یہ تو مجھ سے یو کڈ سے نالج, مور ایکنالج یو کڈ سے, بڑی میں نے ان سے باتیں سیکھی ہیں, بہت کچھ سنا بھی ہے, اور تھینک یو سو مچ آپ سب حضرات کا اتنی اچھی باتیں کرنے کے لیے. بٹ جہاں تک میں اپنی بات کہوں گی, میری نظر میں تو ادب جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس کا ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے, یعنی اٹ پلیز a major character, it brings a major impact on the lives of people. جو بھی معاشرے میں لوگ ہیں, وہ کوئی کمیونٹی یا کسی مذہب کی بات نہیں کرے, I am talking about all. میں اس وقت یہاں بات کر رہی ہوں معاشرے کی. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ انسانی احساسات اور سوچ کو ایک مکمل شکل دیتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ that it is a true reflection of human life and human behavior. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, جو کہ مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک بات ہوئی تھی. I was taking class of pre-medical کی میں کلاس لے رہی تھی, تو وہاں پہ ایک بچی نے مجھے پوچھا کہ میم وی آر گوئنگ ٹو بی ڈاکٹرز, تو آپ ہمیں پوئٹری پڑھا رہے ہیں, پوئٹری کا ڈاکٹری سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا سوال ایسے اس کا بڑا زبردست تھا اور بڑا ویلڈ سوال بھی تھا, بٹ آئی جسٹ ٹولڈ ہر کہ بیٹا بات صرف اتنی سی ہے, ایک ڈاکٹر جو ہے نا, یہ پوئٹری جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر احساسات اور اس کی ایک مثبت ایک رویے کو جنم دیتی ہے. جب آپ پوئٹری پڑھتے ہیں, آپ ادب پڑھتے ہیں, تو آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک بڑی پازیٹیو سوچ ہو جاتی ہے. یو لو نیچر. آپ جو انسان ہے اس کو نیچر سے, اس کو انسانوں سے پیار جو کرنا آ جاتا ہے, ان کو سمجھنا جو ہے سیکھتا ہے اس بات سے. اور ایک ڈاکٹر کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے, اس کے لیے اپنے مریض کے لیے اچھے الفاظ ہونے چاہیے, کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک مریض کو ایک اچھے الفاظ کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں تو کئی بار وہ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات سے اپنے اندر ایک بڑا کمفرٹ محسوس کرتا ہے. سو ایک ڈاکٹر کا
जो है वो लिटरेचर पढ़ने का मकसद जो है वो सिर्फ ये भी कहा जा सकता है कि उसके अंदर एहसास पैदा करना, जो कि बहुत जरूरी है। तो बहरहाल वो एक बड़ी अच्छी सी बात है, मुझे आज भी याद आती है कभी कभी कि वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि जो अदब है यानी लिटरेचर है वो हमारी जिंदगी में एक बड़ी मुस्बित सोच लाता है, एक बड़ा रवैया जो है वो पैदा करता है। मैं जरूर इस बारे में जी एस्टर टीचर तो साहबा शायद मैं अपनी जी जी बहुत शुक्रिया। अब वक्त ये है कि बहरहाल थैंक यू सो मच आप सबका जी और सनसन साहब आपका भी। और चलें जी, अ, ओवर टू यू नाउ। यस मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर प्रिया तबीता साहबा से, उन्होंने टाइम निकाला और आज अच्छी गुफ्तगू रही। इसी तरह आसनात कमल साहबा उससे पहले प्रोग्राम में थी लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश करके पहुंची और हमारे साथ आई। आपका बहुत ही शुक्रिया। इसके तारिक साहब आप तो खैर मुझे नहीं पता था कि छुट्टियां भी हैं क्योंकि आप अदालतों ने आपको छुट्टी दी है कि आप थोड़ा रिलैक्स करके अपने लोगों के लिए भी सोचें, अदब के लिए भी, सियासत के लिए भी सोचें। तो आपका बहुत शुक्रिया। आदिल अमीन साहब आज तो यही कर रहे थे कि आज तलवार बड़ी सख्त चलेगी लेकिन तलवार में रखा है थोड़ी नरम ही हाथ रखा, वो भी अच्छी बात है कि क्योंकि लोग तो को ये कर रहे थे कि मैं भी आज पता नहीं क्या क्या होने लगा है क्या नहीं है, लेकिन ये बड़ा जरूरी था। इस तरह की नशिस्तें, तनकीदी नशिस्तें बहुत जरूरी हैं। बहुत एक वक्त था जब हम अफसाना या नज़म या गज़ल तनकीद के लिए रखते थे और उस पे बाकायदा बहस होती थी। बहुत सेल हासिल गुफ्तगू होती थी कि यहाँ अगर ये हो जाता तो बेहतर था, या क्लाइमैक्स ऐसे है या आपने ये चीज़ वाज़िया नहीं की तो बड़ा अच्छा रिजल्ट पॉजिटिव आता था। ये 30-35 साल पहले की बात है, लेकिन इस तरह से काम होना चाहिए, आना चाहिए। आपकी जो अदब है वो अगर तनकीदी नशिस्त में आता है तो उसका जो है कोई सेल हासिल गुफ्तगू रहती है। इसी तरह एस्टर साहबा बहुत ही कम वक्त में हमारे साथ आई, चूँकि इस वक्त कोई और मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने थे, लेकिन आपने हमारे इस मुश्किल वक्त में जो है हमारे साथ आई। बहुत शुक्रिया आप सबका। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। और उन तमाम जो नाजरीन हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें फीडबैक भी दी और वेल डन और इस तरह भी कहा, देख रहे थे। कराची वाले तो खैर वैसे ही बड़े अदब में एक नाम पैदा करते जा रहे हैं। तो कराची से हमारे साथ आयरन फरद भी थी जो काफ़ी उन्होंने फीडबैक दी, सबको फीडबैक दी, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और बहुत सारे तो खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। टेक केयर, एहतियात कीजिएगा, अपनी ज़रूर जो आपके अंदर है उसके आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते तो जो इंसाफ जो है कभी नहीं मिलता, कभी हम जो है वो अच्छी चीज की तवक्को नहीं कर सकते या अपने अंदर ही रखेंगे किसी भी चीज को, चाहे वो अदब है, चाहे सियासत है, कुछ भी है। अगर आप अपने अंदर रखेंगे या कोई और रास्ता चोर दरवाजा ढूंढेंगे तो आप कभी भी उसकी हकीकी खिदमत नहीं कर सकेंगे। तो आप सबसे इजाजत चाहते हैं नेक तमन्नाओं के साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।